when you are going to go to fill your form, are you filling it at your place? You can fill it wherever you want. You know, it says that you should keep it yourself very aloof when you are filling the form, because your जो login credentials हैं, if somebody has it, वो credentials वो वापस login करके तुम्हारे कुछ चीज़ें change कर सकता है. But as a tutor, I suggest that when you do it, you do at least 2 friends together. You should sit, and then you should, your good friends, you should sit with your friend and then fit in with your paper. ऐसा नहीं कि भाई अकेले बैठ के करो, क्योंकि क्या होता, कभी कभी आप कुछ गलती कर लेते हैं, आपका दोस्त आपको वो गलती बता सकता. तो that is one very important thing that you will do is कि you will sit with one friend. Then you will sit with one paper and pen. ठीक है, एक plus your signature. You should have, for example, you are filling it in your mobile. You should have your signature, proper signature, as a scanned copy. एक any photograph proof की any copy. जैसे it can be Aadhaar card, it can be PAN card, it can be driving license, it can be anything with your photo on it. 1, 2, correct. 3, एक proper passport size photograph जिसमें 80% of your face is seen, your ears are seen, you're not wearing a cap, you're not wearing a chunni on your head. A clear passport size scanned copy of your passport size photographs. तो ये कौन सी 3 चीजें बोली मैंने? एक, I said your signature. 2, your proper signature, okay. 2, your identity proof of photograph. 3, your passport size photograph. 4, your SSC mark sheet. Your SSC mark sheet, because many times तुम्हारे पैन में तुम्हारा नाम अलग, आधार में तुम्हारा नाम अलग, SSC में तुम्हारा नाम अलग, फादर का नाम अलग. Whatever information you will fill as per your SSC mark sheet. Even अगर उसमें spelling mistake है तो है, वैसे ही everybody spells different names with different spellings, okay. But जैसा SSC mark sheet, तुम्हारा भी नाम और तुम्हारे दोनों पेरेंट के नाम, they ask you mother's name also, clear? तो सारा कुछ will be exact, alphabetically exactly like your SSC certificate. ये हो गई चौथी बात, that you will keep your SSC certificate in front of you. और fifth, the most important thing is you should have an email address which is working. जैसे as it is you have your test portal working on the email address only. साल भर से तुम वो email address यूज कर ही रहे, तो वो एक्टिव ईमेल एड्रेस ही डालने का, जिसका पासवर्ड तुमको पता है, जो ईमेल एड्रेस एक्टिव है, हमेशा से चल रहा, तुम्हारे को एकदम आदत है उसकी, कोई नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करके नहीं डालने का. क्लियर? बिकॉज सारे बाद में फर्दर नोटिफिकेशंस विल कम टू योर ईमेल एड्रेस ओनली. मेरी बात समझ में आई? मतलब तुम्हारा हॉल टिकट भी ईमेल एड्रेस पर ही आएगा. इफ यू फॉरगेट योर ईमेल एड्रेस देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर. करेक्ट. 2200 रुपये लड़कों की फीस है और 1100 रुपये लड़कियों की फीस है. कैटेगरी कास्ट वाले लड़के लड़कियां सबकी 1100. सिर्फ ओपन कैटेगरी के लड़कों के लिए 2200 फीस. प्लस इफ यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, इफ यू हैव अ PWD सर्टिफिकेट, मतलब एनीबडी हु हैज अप्लाइड फॉर एनीथिंग लाइक अ फिजिकली पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज या पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, PWD सर्टिफिकेट, you should have a copy of that PWD certificate also, with a scanned copy of that certificate before you start filling the application. ठीक है? Now let me just show it to you. How is this registration process? Very simple and easy. एकदम आसान बना के रखा है, कहीं कोई complexity है ही नहीं. और हर एक आइटम पे they have given the instruction बाजू में. Whatever instruction I have given, they have been given everywhere. Name when you type, वहाँ पर उन्होंने बॉक्स बना दिया wherein they are saying that your name should match your SSC certificate. Like for example, this is your registration link. It tells you this is your GPAT pharmacy aptitude test wala main home page. This tells you to go to a page
एंड इट टेल्स यू कि ये एक्सटर्नल प्लेस पे लेके जा रहा, तो गो टू दिस एक्सटर्नल प्लेस एंड यहाँ पर यू विल हैव टू फिल इन द न्यू रजिस्ट्रेशन, द न्यू देयर इज जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इफ दे वांट टू कम बैक, देयर आर इंफॉर्मेशन जो नॉन चेंजेबल है बाद में। उन्होंने एक लिस्ट दी है कि ये सब इंफॉर्मेशन, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में एडिट नहीं होंगी। तो वी शुड नो कि हम फर्स्ट टाइम में ही सही सही इंफॉर्मेशन, हमको ऐसा करना पड़ चुका है कि हमको फॉर्म स्टूडेंट से 2 बार भराने पड़े। एक रीजन था कि वो अपना ईमेल एड्रेस भूल चुकी थी, वो लड़की क्वालिफायर थी, अगर हम नहीं करते हैं तो हम वेस्ट कर देते हैं हमारी एक क्वालिफायर को। इवन लास्ट ईयर वन स्टूडेंट हैड अ प्रॉब्लम विथ हर नेम, बहुत मुश्किल जाता वो प्रोसीजर करना टू चेंज द नेम लेटर। So it's better that we fill the form in extreme shanti. I selected a Friday today. I thought कि आज फ्राइडे है तो आज ही तुम सबके फॉर्म भरवा देते हैं। जस्ट आई डोंट नो, आजकल मैं तिथि विधि में बिलीव कर रही, तो अदरवाइज आई वुड हैव टेकन दिस क्लास yesterday only. I thought आज फ्राइडे है तो आज लेते हैं, right? So this is here they are giving you information bulletin wherein they are talking to you about the download information bulletin. सारी information यहाँ पर डिटेल में दी गई है अबाउट द फी स्ट्रक्चर। 2200 रुपए फॉर मेल्स एंड बाकी के सिर्फ ओपन कैटेगरी मेल्स, बाकी के सबके वास्ते 1100, फीमेल हो मेल हो ऑफ एनी कास्ट 1100। तो ठीक है, बेचारे ओपन कैटेगरी के मेल के साथ नाइंसाफी है, क्या ही कर सकते। that is one. Then we have it is again requesting you to fill the application very carefully, read the instructions before you fill in the application. It is telling you that the password should be very particular, मतलब उसमें स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, उसमें ये ऊपर वाले क्या बोलते हैं ना इसको, अपर केस लोअर केस, और फिर ये हैश एस्टेरिक ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड। इसलिए मेरे को चाहिए कि दैट कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर, राइट इट डाउन with pen and paper, write it down when you are typing it for the first time. फिर कोई और मिस्टेक आती, he again asks you to retype the password, again ask you to, वो कैप्चा है नीचे, कैप्चा भरो। तो राइट इट डाउन वॉट एवर अजीबो गरीब पासवर्ड यू वॉन्ट टू हैव। इवन दे हैव अ ऑप्शन ऑफ अ क्वेश्चन फॉर रिमेम्बरिंग द पासवर्ड, बट मैं कल कोशिश करके देखी, जैसा पासवर्ड हम बना रहे हैं उनको, जैसा उनको हाई प्रोटेक्टिव पासवर्ड चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कोई भी सादा सुधा पासवर्ड। तो और जो क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम सादे सुधे, नेबर 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 के पेट के नाम बताओ, तो आई रोट सिल्की, but Silky does not give me any hint of my password. So you should write that neighbor wala question, जो भी question you like, you should write it down so that you have that proof. And I would suggest, अच्छा friend अगर है, keep that, take a photograph, keep it in a proper place so that you don't forget it. ठीक है? So this is about the some instructions about filling the form. They are telling you about how your photograph should be, and here they are giving you the information of कि भाई तुम जब फोटोग्राफ लेते तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, यू जस्ट सीन द डिटेल्स ऑफ द फोटोग्राफ कि तुमने तुम्हारा बहुत अच्छा कैमरा है तो फोटोग्राफ थोड़ा हैवी हो जाता, 100 KB, they don't allow 100 KB, they allow your photograph in 10 KB to 200 KB, so your photograph should be in that limit, लेकिन it should be legible. इवन तुम्हारा अगर PWD सर्टिफिकेट है तो वो तुम जो स्कैन कर रहे, तुम कॉम्प्रेस भी कर रहे, पढ़ने जैसा होना चाहिए, लिखा हुआ है, इट शुड बी लेजिबल वो। या फिर तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारी सिग्नेचर फट जाए ऐसा नहीं चाहिए, प्रॉपर यू साइन इट प्रॉपरली एंड देन गिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी रेडी प्रायर, सॉफ्ट कॉपी में ही चाहिए क्योंकि बाद में अपलोड करने पड़ेंगे। Once you are doing the payment, that time before the payment he'll ask you to upload all this. Clear? So then we come to the steps. This is like वो बोल रहा है कि सारे पोर्टल खोल के रखे हैं टू पे, तो you need not go to the साइबर कैफे, कुछ भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जैसे तुम सारे रेजर पे से जैसा भी पे करते सब कुछ उन्होंने ऑन करके रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है योर पासवर्ड,
because every time you want to log in again, you will require even to download your admit card, to download your GPAT scorecard, you will require that password. तो password protected होना चाहिए और सही तरीके से तुम्हारे पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, कौन सा कैपिटल लेटर, कौन सा स्मॉल लेटर, एवरीथिंग, बिकॉज वो सिंपल पासवर्ड अलाउ नहीं कर रहा. जैसे योर वेबसाइट पासवर्ड्स आर सिंपल, योर नेम एंड वन एनरोलमेंट नंबर, easy, nothing complex, but he requires a very strong password. वो अलाउ ही नहीं कर रहा सिंपल पासवर्ड, और वो जो सजेस्ट कर रहा पासवर्ड वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बस नहीं. तो यू शुड हैव योर ओन पासवर्ड, बट इट शुड बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, write it down the password in a proper way. Then this is the instruction to the candidate that do not disclose your password to anybody. It tells you that you have an option to change your password later in future. You can change your password. तुमने अभी कुछ रखा, बाद में चेंज करके शांति से नया पासवर्ड सेव करके रख लो. That option also is given. पासवर्ड की डिटेल्स ये दे रहा 8 to 13 कैरेक्टर्स, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, सब होना उसमें, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर, और एक आधी कुछ तो भी हैश, एस्टरिक, जो भी तुमको अच्छा लगे, वो जिसकी तुमको आदत हो. सबको एक की आदत रहती है, no, asterisk, hash, whatever you like, put that, whatever you require. You can reset the password later, but you cannot unless you read all this and you tick this download. I have downloaded the information bulletin and I have read the instructions. He does not allow you to proceed, and then you proceed on the next page. This page is very easy and simple. Okay? Here you have the candidate's MC. It is giving you an instruction wherein you write the candidate name properly. Do not write Mr., Miss, Doctor, nothing. Correct? Write full name as per the mark sheet in the 10th ka class mark sheet. Similarly, do not write anything like Shri, Shrimati for your father and mother. Clear? I'm just filling the form for some, because so that unless we fill the form, like for example, if it is Mamta, you should know that you are having two names, a name before marriage and the name after marriage. You should fill in your name before marriage or that name which is on your SSC certificate. Clear? Then you have बाकी के लोगों के लिए this is irrelevant. You have only one name right now. Do not write Mr., Shri, father, doctor, anything for your father's name. Your name should be exactly, the spelling should be exactly like the spelling in your SSC mark sheet. I'm just randomly writing it because I don't know कितने तो भी spelling हो सकते हैं मेरे father के name के भी, right? Correct? So I'm just simply randomly writing the names here, very randomly, some date of birth, but they match. Even if you have a faulty, you just give a random Aadhaar card number. I tried yesterday. They don't take it. They will need they have a processing wherein they'll require the right number which is attached to your name only. So see to it this that all these informations are filled correctly. Correct? मैम, यस, टेल मी बेटा. पिछले बार उन्होंने आधार नंबर भी नहीं लिया था मैम, सही आधार नंबर डाला था, फिर भी वो मैच नॉट फाउंड बता रहे थे. फिर नहीं क्या, विदाउट आधार कार्ड ही प्रोसीड करना पड़ा था हमको पूरा. तो गिव अनदर नंबर. They have options like all of them. See, they have. नहीं, वहां नहीं मैम. जब लास्ट फॉर्म खत्म हो जाता ना, तब हाँ. उसके बाद बोलते हो आधार लिंक करना है कि नहीं करना है करके तुमको. अच्छा. हाँ, तो पिछले बार ट्राई किया था बहुत बार, 2-3 जन के भी फॉर्म भरे थे. तो वो आधार नंबर सही डालने के बाद भी ले ही नहीं रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. सीधा बोल रहे थे कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मैच ही नहीं कर रही, बोले आधार कार्ड के साथ. तुम्हारा नाम तो फिर आधार कार्ड विदाउट, पे और जो मोबाइल सेम था नंबर मैम, बोले सेम हो था. सब सेम है. हाँ, 2-3 जनों के फॉर्म भरे थे, किसी का भी मैच नहीं हो रहा था. किसी का भी मैच नहीं हो फिर रहा था. विदाउट, नहीं, फिर विदाउट आधार कार्ड ही हमने प्रोसीड किया आगे. अच्छा, फिर बाद में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं.
क्योंकि कल मेरे को उसने अलाउ नहीं किया, जब मैंने यहाँ पे मैंने उसको पैन कार्ड दिया कल, आई गेव माई पैन कार्ड, तो मैंने ऐसे ही कुछ तो भी डाल दिया था, सम एक्स वाई जेड, उसने मेरे को अलाउ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने राइट डाला, उसने मेरे को आगे प्रोसीड करने के लिए, आई वॉज ट्राइंग टू फिल दिस फॉर्म सो दैट आई कैन सी कि कहाँ कहाँ कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आती। तो मेरे को यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। दे गेव द पैन कार्ड नंबर। यू हैव मेनी अदर ऑप्शन, यू कैन गिव अ ड्राइविंग लाइसेंस, वॉट एवर, any other valid, anything, even a bank passbook is also okay. If you can have a document which is having the same name as that of your SSC document, that will become even easier. So you can use this, correct? अब instead of filling the entire form, I guess ये यहाँ पर this is a very complex, ये देखो, this is what they want. See, this is how they are suggesting a password, very complicated password. Look at the password. And important, your address. If your address is same, your correspondence address, your present address, both of them are same, just tick this dabba and it is all done, right? Your both the addresses are same, no need to rewrite it. Agar aapka sab same hai, for the hostelite students who stay away, you should see to it that you put your permanent address only, बिकॉज तुम्हारा करस्पॉन्डेंस वो रूम वाले एड्रेस पे होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इट्स बेटर दैट योर परमानेंट एड्रेस इज ओनली यूज्ड, प्रॉपर जहां पर सारे तुम्हारे कागज आते हैं, या फिर यू नो दैट इज द राइट प्लेस वेर इन यू शुड हैव अ प्रॉपर, योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस should be preferably your permanent address. You never know what time your result will come, what time your decision will come. करेक्ट, तो कीप इट योर परमानेंट एड्रेस ओनली। यशना तुम्हारे लिए भी आई हैव अ रियल, एंड आदित्य यशना, पीपल फ्रॉम हरियाणा, they don't write their address only, they don't write their surname also. I don't know why. They have, अभी उनका स्टेट का सिस्टम है, प्लीज सी टू इट दैट वॉट एवर इज देयर इन योर SSC स्टेट का SSC सर्टिफिकेट, यू राइट इट डाउन। I remember posting the books to you was a big trouble. Only Aditya, नो गली, नो एड्रेस, नथिंग, आदित्य हरियाणा। कितने आदित्य होंगे हरियाणा में? प्लीज सी टू इट दैट यू आर राइटिंग द एड्रेस प्रॉपरली। सिमिलर, यू नो, दिस वाज द प्रॉब्लम आई फेस्ड विद बोथ द स्टूडेंट्स फ्रॉम हरियाणा। ये यशना के साथ भी मेरे को सेम प्रॉब्लम, नो प्रॉपर एड्रेस। जैसे other states we have, like, you know, proper, it was easier to send things. Similarly you also have this अभी अगर मेरे को लगता है कि अभिजीत, अगर ये आधार कार्ड का प्रॉब्लम आया है तो आधार कार्ड को हटाकर वी फिल इन द अदर फॉर्म्स हियर। बाकी तो मेरे को तो कल ऐसा कोई प्रॉब्लम आता हुआ दिखा नहीं, बिकॉज आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। आई डोंट थिंक सो विल बी, यू वांट मी टू फिल द फॉर्म टुडे इन फ्रंट ऑफ यू इन माय नेम? This is my PAN card, AMCPB 4958C. I think this is correct. I'm just filling the form. I am not going to give the exam this year. She's not eligible for the exam. मेन थिंग्स जो मैंने तुमको बोली कि व्हाट थिंग्स यू विल रिमेंबर टू कीप, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सिट विद अ फ्रेंड व्हेन यू, एंड आई सजेस्ट, ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, I suggest, especially all the localite students, and that you should fill the form at the same time. Decide one time, आपस में, wherever you are sitting, fill the form in the same time. इसका सिर्फ एक हेल्प हुआ है हमको कि most of the time when we fill the form in the same time, we get the same slot, same place of exam. तो क्या होता है ना, आपका fear factor बहुत कम हो जाता है। आपके आसपास सिर्फ आपके ही बच्चे रहते हैं, आपके ही फेलोज रहते हैं, you're like, you know, you don't feel like the real exam. अपन ऐसे ही जैसे रोज रोज बैठ के देते थे वैसे ही हो गया सब एक साथ। I am not from, you know, I am not telling you this so that I can say कि तुम वहां जाके चीटिंग करना, लेकिन yes, it makes a lot of difference because there are times छोटी छोटी चीजों के लिए कभी कभी
किसी की जरूरत पड़ जाती है आपको, यू नीड अ फ्रेंड। इसने तो कल लास्ट ईयर वीडियो वगैरह बना लिया था, यूट्यूब पे फेमस हो गया था। ही वाज नॉट अलाउड टू गिव द फैजान 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 नहीं है, राइट? तो देर हम विल नॉट तीन का बी। सेंटर एक ही था हमें। हाँ, फैजान, मेरा और अभिषेक का तीनों का सेंटर एक ही था हमारा। और सब जन एग्जाम हॉल में होते, विल बी सीइंग ईच अदर मोर टाइम्स देन दिस, बट एग्जाम हॉल के इंस्ट्रक्शंस सब जन प्रॉपर फॉलो करेंगे और बहुत एडवांस में पहुंचेंगे, बहुत एडवांस में पहुंचेंगे। बिल्कुल 1 घंटा पहले बुलाया तो 2 घंटा पहले पहुंच के बैठ जाएंगे ना। उनके पास बड़े सारे प्रॉब्लम्स थे लास्ट ईयर स्पेशली, मतलब हमको पता है त्रिवेदी का केस, आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो इट। तुम सब तो, जिनको प्रॉब्लम हुई, तुम तो 3rd ईयर के थे, पर तुम लोगों को महाराष्ट्र में दे अलाउड द एग्जाम इन द सेकंड स्लॉट। त्रिवेदी, we had a student Trivedi last year. He gave the exam, he went to the exam and he was not allowed in the center because they said he was late. He said he was not late. फिर यूपी, they fought with him, they did not allow him in the exam. He was trying to convince कि मेरे को एग्जाम देने दो, they did not allow, he did not give the exam on the last year. Just imagine, you work hard and you don't give the exam, right? So this situation should not come because we don't know about the procedure, about what these people, इनके कोई system नहीं रहता कुछ। गौरी, you remember, she posted कि मैम महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है क्या? It was like full bhayanak, Nasik and all, there was bhayanak cheating. Like एक computer पे there were three students standing and they were googling and giving the answers. So we get prepared for the worst scenario, but हमारा कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारे साइड से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अमरावती में दे गेव द सेकंड ऑप्शन, दे गेव कि भाई जो 9 से 12 के बाद दे गेव अनदर स्लॉट, जैसे तुम लोगों ने दिया ना सेकंड स्लॉट में, दिया ना एग्जाम के नहीं दिया, सिर्फ यूट्यूब बनाया। सेकंड स्लॉट में पर वो जब एग्जाम टाइम था ना, जब हमारा खत्म होते आया तो इनको बिठा दिया सॉल्व करना। So, हम लोग जा रहे थे तो दिन जाके इसका सबमिट करना। तो ये वाली सीन इस साल हो सकती, इससे पहले कभी हुई नहीं थी, बट ये सारी बेवकूफी हो सकती। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट, रीचिंग द एग्जाम सेंटर इन टाइम एंड फिल द फॉर्म इन द सेम टाइम। स्पेशली तुम लोग लोकलाइट, और तुम लोग जो हॉस्टलाइट्स है या जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो उनके साथ में फॉर्म भरो आसपास। It makes it easier. You go to the center at the same time. You have your friends around you. तुम्हारा प्रेशर बहुत कम हो जाता है, correct? So I think these are the details of the exam that I wanted to share. I'm not filling the form again. ठीक है? Clear everybody? ये जो copies I mentioned, please see to it that you have it, और with that instructions legible, और कितने के भी क्या, क्योंकि उससे ज्यादा हुआ तो it will not allow you to upload. अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैठना ताकि सब कुछ बराबर से अपलोड हो जाए, और एक ही टाइम पे बैठना, एक ही टाइम पे। वी हैव टाइम टिल व्हाट 6th मार्च। अभी करके हम लोग फ्री हो सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम दैट वी फिल द फॉर्म इन द राइट टाइम, वी गेट द राइट सेंटर्स, they will ask, they may ask you about the centers also. You take the center, common center, first choice, keep common for all of you. Say for example the nearest distance you want to keep it common, क्योंकि बाद में एक दिन पहले पहुंचना, वो सब चीजें भी देखनी पड़ती। जिनके सेंटर्स घर से पास में है तो दे गिव देयर ओन सेंटर। हमारे पास ऐसा नहीं है, we'll have to travel minimum 2 hours wherever we want to reach, we'll have to travel 2 to 3 hours। ठीक है, सेंटर कहाँ है क्या है एग्जैक्टली पता। लास्ट ईयर हमारे बच्चे रास्ते में घूम रहे थे, गूगल से उनको पता नहीं चल रहा था कि सेंटर कहाँ है। हाँ, यश महेश्वरी के साथ ही हुआ था, टायर फट गया, फिर वो तो अच्छा हो गया कि दे टुक पेरेंट्स विद देम, तो अंकल पीछे से आए एंड ही सॉ कि स्टैंडिंग ऑन द, गाड़ी में डाल के लेके गए, नहीं तो ही वुड हैव मिस्ड द एग्जाम। तो ऑल दीज सिचुएशंस वी डोंट वांट देम टू गेट रिपीटेड, एंड प्लस all whatever you are writing in the form, you should write it down on the page also, please. Your password, your name and everything, user ID, your email address, correct? So these are the things I wanted to tell.